شام گہری ہو چکی تھی اور وہ ہمیشہ کی طرح واپسی پر لیٹ ہو چکا تھا۔ ایک طرف تو سردیوں میں مغرب کے بعد یہ رات اچانک سے وارد ہو جاتی تھی۔ ٹریفک اپنی روٹین میں سست روی سے آگے بڑھ رہی تھی۔ یہ سست روی ڈاکٹر یزدان کے اندر اتھل پتھل کو مزید بڑھا رہی تھی۔ بڑھتا ہوا اندھیرا اس کے اندر بے چینی کو بھی بڑھا رہا تھا۔ آج اسے اپنی محبوب بیوی کو ڈنر پر لے کر جانا تھا۔ ہسپتال سے نکلتے نکلتے شام رات سے جا ملی۔ اب وہ ذہن میں اسے منانے کے لیے توڑ جوڑ کر رہا تھا۔ گھر پہنچتے ہی اس کا سامنا ماں جی سے ہوا۔ ان کے چہرے سے اسے گھر کی اندرونی حالات کا بخوبی اندازہ ہو رہا تھا۔ طیبہ نک سک سی تیار ہو کر فون پر اپنا پسندیدہ ڈرامہ دیکھ رہی تھی۔ تو بیگم صاحبہ تیار ہو کر ہمارا انتظار کر رہی ہیں، ڈاکٹر یزدان نے اس کی پیشانی پر بوسہ دیتے ہوئے کہا، مگر طیبہ کے چہرے کے ساکن تاثرات نے اسے مسئلے کی گمبھیرتا کا احساس دلایا۔ ارے بس میں نکلتے نکلتے لیٹ ہو گیا۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے ہی جا کھڑا ہوا۔ بالوں میں برش کرتے ہوئے بھی وہ بیک ویو سے اسے مسکراتے ہوئے دیکھ رہا تھا، مگر وہ ہنوز چپ تھی۔ تم اگر تیار ہو تو بس نکلتے ہیں پھر۔ یزدان نے گاڑی کی چابی اٹھائی۔ میں کھانا کھا چکی ہوں، آپ بھی آرام کریں۔ طیبہ دو ٹوک جواب دے کر یزدان کی بات سنے بنا ہی کمرے سے نکل گئی۔ اتنی جلدی؟ جملہ یزدان کے لبوں کے اندر ہی دم توڑ گیا۔ وہ جانتا تھا اس غلطی کی سزا وہ اگلے کئی دن اس کی کڑواہٹ کی صورت بھگتے گا، مگر بھگت ہی لے گا۔ آخر وہ اس کی جان کا ٹکڑا جو تھی۔ اگلے دن وہ صبح لیٹ اٹھا۔ گھر میں ہلچل کے احساس نے اسے قدرے بیزار سا کر دیا۔ وہ اٹھ کر باہر آ گیا۔ ڈرائنگ روم میں حبیبہ اپنے دو بچوں کے ساتھ آئی ہوئی تھی۔ طیبہ نے کن اکھیوں سے یزدان کی طرف دیکھا، گویا تمہاری انکہی چاہت تمہارے سامنے ہے۔ اس کے دونوں بچے ماموں ماموں کہتے یزدان سے آ کر لپٹ گئے۔ وہ قدرے ہچکچاہٹ سے انہیں مل کر دور ہو کر بیٹھ گیا۔ ماں جی اس کے شوہر کی تعریفیں کیے جا رہی تھی۔ یزدان اور حبیبہ کی نظریں آپس میں ملیں اور مسکراتے ہوئے لبوں سے سر جھکا لیا۔ دونوں کی نظروں نے ماں کی جھوٹی تعریفوں کی چغلی کی تھی۔ طیبہ نے کڑوا سا گھونٹ اپنے اندر اتارا اور اٹھ کر کچن میں چلی گئی۔ وہ جو ہمیشہ اسپتال جلدی جانے کے لیے ہڑبڑ مچائے رکھتا تھا، آج اس نے سکون سے ناشتہ کیا اور بچوں کے ساتھ وقت گزارا۔ یکدم کسی کونے سے روشنی کی لہر کی طرح دبے پاؤں خوشی ان کے آنگن میں آ بسی تھی۔ ہسپتال کی طرف جاتے ہوئے یزدان اس خوشی کے رنگ کو اپنے ذہن کے دریچے میں محفوظ کرنے لگا تھا۔ شاید اس خوشی کا رنگ ہاف وائٹ تھا، یا پھر وہ بہار کے نیلے آسمان جیسا تھا، ہلکا پھلکا اور تتلیوں کی طرح اڑتا ہوا۔ کیا ایسی نرمگی صبحیں ہر دن نہیں آ سکتیں؟ انہی سوچوں کے جھرمٹ میں تیرتے ہوئے وہ ہسپتال کی راہداریوں میں گم ہو چکا تھا۔ کلاسز شروع ہوئے 2 ہفتے ہو چکے تھے اور یہ ماہنور کی بچی نے ابھی کالج جوائن بھی نہیں کیا تھا۔ ماہم کے بچپن کی سہیلی جو اسکول میں بھی ہمیشہ اس کے ساتھ رہی تھی، جانے کیوں کالج میں داخلہ لینے کے باوجود کلاسز نہیں لے رہی تھی۔ ماہم سارا دن اس کے بنا چپ چاپ پھرتی رہتی۔ گھر میں بھی صرف ماما ہی تھیں جو اس کے شب و روز کی ساتھی تھیں۔ وہ کالج سے جاتے ہی ان سے ڈھیروں باتیں کرتی، مگر پھر بھی اسے لگتا کچھ کہنا باقی ہے۔ ماہنور کے بات کیے بنا اس کا دن نہیں کٹتا تھا۔ کہیں اندر ایک خالی پن سا محسوس ہوتا، جس میں اگر ماہنور نہ ہوتی تو ماہم کو لگتا اس کی اپنی آواز اندھیرے میں گونج گونج کر واپس اسی تک آ رہی ہے۔ وہ شام میں ماما کے ساتھ فارمیسی چلی گئی۔ وہاں بیٹھ کر وہ اپنی پڑھائی کرتی اور ماما کو کام کرتے دیکھتی رہتی۔ کبھی کبھی اسے بابا بہت یاد آتے۔ اچانک سے جب وہ کسی کپل کو ساتھ ہنستے باتیں کرتے دیکھتی، اسے لگتا ماما اکیلی ہیں۔ ایسے وہ کئی دن وہ ماما کو پچکارتی رہتی۔ کہیں اندر وہ اپنی ماں کی تنہائی کے ساتھی بن جانا چاہتی۔ کبھی اسے لگتا اگر وہ نہ ہوتی تو شاید بابا آج زندہ ہوتے۔ ہر بار جب ایسا ہوتا وہ ماما سے پوچھتی، کیا میں بہت ضدی ہوا کرتی تھی؟ اور ماما کا جواب ہوتا، ہاں بہت۔ جب تم 3 سال کی تھی تب تم نے لائٹوں والے غبارے دیکھ لیے اور ضد کرنے لگی۔ تمہارے بابا سڑک کے پار دکان پر گئے تھے، تم ان غباروں کے تعاقب میں دوڑی اور تمہارے بابا نے تمہیں بچاتے ہوئے اپنی جان دے دی۔ ماہم ہر بار یہ سن کر شرمندگی محسوس کرتی تھی۔ وہ کسی سہمے ہوئے بچے کی طرح ڈبڈبائی ہوئی آنکھوں سے ماں کو دیکھتی اور ماما جھٹ سے کہتی، تو تمہیں معلوم ہے میں نے تمہارے بابا کے منہ سے آخری الفاظ کیا سنے؟ ہزاروں بار کہی بات کے جواب میں ماہم جھٹ سے دائیں بائیں سر ہلاتی دوڑے تھی۔ ان کے آخری الفاظ کی گونج آج بھی مجھے سنائی دیتی ہے۔ اس گفتگو کے بعد ہر بار ماہم وہ رات جاگ کر گزارتی۔ کہیں اندر وہ مجرمانہ خاموشی اسے کسی گھن کی طرح لگ گئی تھی۔ خود کو اس خاموشی
नाम असदहे के चुंगल से आज़ाद करवाने के लिए वो खुद से अहद किया करती कि वो मामा को कभी अकेला नहीं छोड़ेगी, वो हमेशा अपनी जान से बढ़कर उनका ख्याल रखेगी। ये अहद वो अपने बचपन से आज तक मुसलसल दोहराती आ रही थी, मगर वो नहीं जानती थी ये अहद उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी कमज़ोरी बन जाएगा। डॉक्टर यज़दान की ये तीसरी नाकाम सर्जरी थी। वो एक अरसा अपने काम में माहिर रहा था। वो एक अच्छे खासे कार्डियोलॉजिस्ट की फहरिस्त में शुमार किया जाने लगा था कि उसके अंदर की मायूसी ने उसके वजूद की घेरा तंग कर लिया था। वो पूरी जिद्दोजहद के साथ खुश रहने की कोशिश करता, मगर तैयबा के बदलते मूड और घर की बेसुकूनी उसकी सारी कोशिशों पर पानी फेर देती। उसे अपनी प्रोफेशनल लाइफ भी अपनी पर्सनल लाइफ की तरह डगमगाती हुई नजर आने लगी। बुझे दिल और ढलके हुए कंधों के साथ वो घर वापस आ गया। माँ जी इशा की नमाज पढ़ रही थी। वो वहीं उनके पास बैठ गया। सलाम फेरते ही उन्होंने उसका माथा चूमा। क्या हो गया है मेरे लख्त जिगर को? जवाब सुने बिना वो दुआएं पढ़कर उस पर फूंकने लगी। फिर वो दुआ मांगने लगी। डॉक्टर यज़दान की नज़रें वीरान पड़े ड्राइंग में उस बहार के नीले आसमान जैसी हल्की फुल्की खुशी तलाशने लगी। वो जाते हुए कैसी रौनक छोड़कर गया था और वापसी पर वो एहसास मिट चुका था। शुरू शुरू में उसे लगता था मोहब्बत जब ज़ौजियत में आ जाए तो मकान घर लगने लगता है। वो जिसको आम अल्फाज में सहन कहते हैं वो आंगन बन जाता है। वो हमेशा तैयबा को बहुत सारा वक्त देने की कोशिश किया करता, मगर उसकी ड्यूटी उसे बहुत ही कम इजाज़त दिया करती। पहले पहल वो सिर्फ खफा हुआ करती थी, फिर वो लड़ने झगड़ने लगी, तोड़ फोड़ करने लगी। पिछले माह तो उसने माँ जी से बदतमीजी ही कर डाली। गुस्से में डॉक्टर यज़दान का हाथ उठ गया। वो एक थप्पड़ पर कई दिन शर्मिंदा रहा, दिल ही दिल में खुद को कोसता रहा। कभी कभी उसे लगता तैयबे की अपनी इनसिक्योरिटीज़ उसे दिन ब दिन डिप्रेशन का मरीज बना रही हैं, मगर जब यज़दान ने उस बात का जिक्र माँ जी से किया तो हंसने लगी। तुम्हारे जाने के बाद और तुम्हारे आने से पहले वो बिल्कुल ठीक ही रहती है। यह जुमला किसी बाज गश्त की तरह डॉक्टर यज़दान के वजूद में कई दिन गूंजता रहता। वो अब भी वहीं देख रहा था। माँ जी ने उसकी नज़रों का ताक़ुब किया और मुस्कुरा दी। मैं तो कहती हूँ तुम दूसरी शादी कर लो। तैयबा और तुम्हारी ज़िंदगी की वीरानी अब मेरे पोते की किलकारियाँ ही ख़त्म कर सकती हैं। माँ जी हमेशा ही उसे बीवी का बांझ होना याद दिलाया करती, जो उसे माँ जी के मशवरों से ज़्यादा दुखी कर दिया करता। वो अपनी अजीज़ जान बीवी को दूसरी औरत का दुख कैसे दे सकता था? वो दिन डॉक्टर यज़दान की ज़िंदगी में कभी नहीं आएगा। वो अपनी ज़िंदगी को इस अज़ियत से कभी नहीं गुजारेगा। वो उठ खड़ा हुआ। अम्मा जी ने मायूसी से उसकी तरफ देखा। खिड़की से अंदर झांकते चांद ने आसमान से सरगोशी की। वक्त डॉक्टर यज़दान के अहद पर कहका लगाकर हंसा। वो दिन जल्द उसकी ज़िंदगी में आने वाला था। वो खामोशी से उसे यहाँ वहाँ फिरते हुए देख रहा था। वो ड्रेसिंग टेबल को तीसरी बार सेट कर चुकी थी और अब फिर से तरतीब बदलने ही वाली थी कि यज़दान ने सोफे से उठकर परफ्यूम उसके हाथ से ले लिया। मेरे दिलो मकान की मलका हुस्सा थूक दीजिए। वो शरारत से हंसा, मगर तैयबा के चेहरे पर रत्ती भर मुस्कान नहीं उभरी। मुझे आपसे बात ही नहीं करनी, बस बात ख़त्म। तो और किससे बात करनी है? यज़दान ने कंधे से पकड़कर उसका रुख अपनी तरफ किया। किसी और से कर लूँगी बात, जो मुझे सुने और समझे, जिसको मेरी कदर हो, तैयबा ने चीखते हुए कहा। पहले पहल वो समझा था तैयबा उसे चिढ़ाने के लिए किसी तीसरे की बात करती है, मगर कोई इतनी बार ऐसे ही तो किसी का जिक्र नहीं करता। ये तीसरा उसके सीने पर बोझ पड़ने लगा था। वो उठकर बेड पर चित लेट गया, मगर उसके खफा होने की किसको पड़ी थी? दूसरी तरफ हनूज बेनियाजी ही बेनियाजी थी। डॉक्टर यज़दान ने वो सारी रात कांटों के बिस्तर पर गुजारी। सुबह उसकी गुलाबी पड़ती आंखें और सूजे हुए पपूटे उसके रत जगह की गवाही दे रहे थे। अस्पताल जाने से पहले वो तैयबा को उठाने आया तो उसने बच्चे की तस्वीर का फोटो फ्रेम सीने से भींच रखा था। उसके दिल की धड़कन मिस हुई। कहीं अंदर उस सोते हुए मासूम से चेहरे पर बेतरह प्यार आया। वो उसे जगाए बिना ही वापस पलट गया। दिल में एक नई उमंग जागी। वो बच्चे के बारे में ज़रूर सोचेगा, मगर वो किसी का बच्चा नहीं पाल सकता। माँ जी की भी पोते की ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। उसके जहन के किसी हिस्से में यकगुना सुकून डेरा डाल चुका था। सुरमई धूप का रास्ता बादलों ने रोक रखा था। माहम बार बार उन बादलों को कोस रही थी, मगर आज वो इतने दिनों बाद महानूर से मिलकर बेइंतहा खुश थी। उसके मन में
कहीं पिया मिलन के दीप जल उठे थे। उस भरी दुनिया में उसे सुनने वाली वाहिद हस्ती महानूर ही तो थी। वो सुबह से मुसलसल बोल बोल कर अपने आप को थका चुकी थी, मगर उसके अंदर अब भी शाम तक बोलने की सकत बाकी थी। महानूर साहिबा के फियांसी को उसका कॉलेज आना पसंद नहीं आया था, इसीलिए वो इतने दिन कॉलेज से गैर हाजिर रही थी और आज बिल आखिर उसे मनाने के बाद महानूर माहम के सामने मौजूद थी। महानूर की सारी बातें, ख्वाहिशात और ख्वाब एक दायरे की कैदी थे। उस दायरे का मरकज उसका पसंदीदा आदमी था। किसी परवाने की तरह महानूर की जिंदगी उस दायरे का तवाफ करती थी। माहम को महानूर का इस तरह दीवाना वार उसे चाहना बहुत खटकता था। अब ऐसा भी नहीं कि एक शख्स आपकी जिंदगी ही बन जाए। वो नाक भूं चढ़ाती, महानूर गर्दन पीछे ढलकाए हंसती जाती। उसे यूं माहम का चिढ़ना भाता था। एक तुम भी किसी को प्यारी हो जाओगी। महानूर उसे तंग करती तो माहम का यूं चिढ़ना और बढ़ जाता। मैं तुम्हारी तरह पूरी जिंदगी एक शख्स के नाम कभी नहीं करूंगी। तैयबा लॉन में टहल रही थी, हैंडफोन कानों में लगाए वो पिछले 2 घंटे से मुसलसल कॉल पर किसी से बात कर रही थी। उसकी खिलखिलाहट माँ जी को बालकनी तक सुनाई दे रही थी। माँ जी भी 2 कश्तियों की मुसाफिर बनी। कभी तो उसकी उदासी को बच्चे की कमी का नाम देती, तो कभी उसका यूं खुश होना उन्हें अजब वसवसे में डाल देता था। वो दुआएं करती कि यज़दान के आने पर वो वैसी ही रहे, मगर हर शाम बेकैफ गुजरती। उन्हीं बेकैफ शामों और उदास सुबहों ने डॉक्टर को पर मस्ता सा कर दिया था। वो अभी रूटीन चेकअप करके ओपीडी से निकल ही रहा था कि इमरजेंसी में आने वाली खातून के लिए उन्हें बुला लिया गया। वो पिछले 2 साल से उसके पास आ रही थी। उनका दिल गुजरते वक्त के साथ कमज़ोर हो रहा था। डॉक्टर यज़दान दिल से उनकी इज्जत करता था। वो पिछले 18 साल से सिंगल पेरेंट थी और अपना मेडिकल स्टोर चला रही थी। दिल के दौरे ने उनको आज आईसीयू में पहुंचा दिया था। 2 घंटे के बाद उनकी हालत स्टेबल हुई थी, मगर डॉक्टर वलीद को दिल में मज़ीद बोझ उठता हुआ महसूस नहीं हो रहा था। डॉक्टर यज़दान थकावट से चूर था। उसके अंदर जिंदगी गुजारने की हिम्मत यूं यूं कम होती जा रही थी। वो काम करते हुए जल्द थकने लगा था, मगर ये उसकी फॉलोअप पेशेंट थी और उन्हें यूं छोड़कर जा नहीं सकता था। डॉक्टर वलीद और कुछ सीनियर से मशवरा करने के बाद नतीजा हार्ट ट्रांसप्लांट तक पहुंचा था। गो ये एक बहुत महंगा ऑपरेशन है। डॉक्टर यज़दान ने डॉक्टर उस्मा के फैसले पर सर अस्पात में हिलाते हुए कहा। डॉक्टर वलीद भी प्रोफेशनल। डॉक्टर उस्मा के लहजे की काट को डॉक्टर यज़दान खामोशी से सह गया। ये हमारी नहीं, उनकी फैमिली की जिम्मेदारी है। डॉक्टर वलीद ने सर अस्पात में हिलाते हुए कहा। डॉक्टर यज़दान का मज़ीद कुछ भी कहना फजूल था। वो खामोशी से वहां से उठकर आ गया। अपने ऑफिस में आकर सर दोनों हाथों के प्याले में गिरा मुसलसल थकान से अपने आप को सोचे जा रहा था। दिल के किसी कोने में आंगन की शाम, जो अब सन्नाटों से मरबूत थी, उसको हौलाने लगी थी। उसने फ़ोन निकाला और तैयबा को कॉल मिलाई। कॉल जा रही थी, मगर बिजी होने की वजह से अटेंड नहीं की गई। डॉक्टर यज़दान ने माँ जी को कॉल मिलाई। फ़ोन पहली बेल पर ही उठा लिया गया। यज़दान ने उन्हें लेट घर आने का बताकर फ़ोन रख दिया। तैयबा कहाँ है, क्या कर रही है, ये पूछना उसने ज़रूरी नहीं जाना। दिल का दर्द दुगना कर गया। जो गम ख्वार मिला के मुश्ताक जिसको बताएगा, वो उस दर्द की दवा तो जानता ही नहीं, और जो दर्द की दवा से वाकिफ़ है उसके लिए दर्द का वजूद अहमियत ही नहीं रखता। इतने में हेड नर्स ने आकर उसे पेशेंट की फैमिली के आने की इत्तला दी। 17-18 बरस की सहमी सहमी सी लड़की उसके सामने खड़ी थी। बैठ जाओ। डॉक्टर यज़दान ने कुर्सी की तरफ इशारा किया। पानी गिलास में उंडेला और उसे थमा दिया। वो चुपचाप पानी के गिलास को घूरती रही, जैसे एक एक कतरे से वाकिफ होना चाहती हो। क्या तुम्हें हार्ट ट्रांसप्लांट के बारे में नर्स ने बताया? डॉक्टर यज़दान ने बाजू सीने पर लपेटते हुए कहा। पहली बार माहम ने नजरें उठाकर उसे देखा। बहुत रो देने की वजह से उसकी आंखों में गुलाबी डोरे तैर रहे थे। जी बताया है, मगर इतने पैसे तो नहीं है मेरे पास। वो हकलाई। पानी का गिलास हनूज उसके हाथों के प्याले में थाम रखा था। तुम्हारी फैमिली में कोई तो होगा जिससे इस मुश्किल वक्त में राब्ता किया जा सके। एक मामू को ही मैं जानती थी, वो तो 2 साल पहले वफात पा गए। उनकी फैमिली से हमारा कांटेक्ट नहीं है। अल्फाज माहम के गले में फंदा बनकर फंस गए थे। उसे लगा वो अभी ही फूट फूट कर रो देगी। डॉक्टर यज़दान को वाक़तन उस मासूम सी लड़की के लिए बुरा लगा, जो अपने कुएं के दायरे में बिल्कुल खुश थी। वही उस छोटी सी दुनिया थी, मगर ये हादसों ने उसे समंदर में ला पटका था और उसे इतनी बड़ी समंदर नामी दुनिया में रहना नहीं आता था।
गुल रंग नज़ारों की भीड़ में वो हाई हील्स पहने कदम चमा चमा कर चलते हुए मुतलका मेज तक आई। उसका इंतज़ार बुके से किया गया। चेहरे पर वालियाना मुस्कुराहट सजाए मौसूफ तैयबा के वारी सदके जा रहे थे। वो कुर्सी के पास खड़ी रही तो वो कहका लगाकर हंस दिया, फिर उठा और कुर्सी खींचकर उसे बैठने का इशारा किया। तैयबा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं। हंसी उसके लबों से जुदा ही नहीं हो रही थी। आज इतने लंबे अरसे बाद वो अपने पसंदीदा आदमी से मिल रही थी, जो उसे कहे बिना बताए उसे समझ जाता था और जिसके पास तैयबा के लिए हमेशा वक्त ही वक्त होता था। 1.5 घंटा कैसे गुजरा उन दोनों को अंदाजा तक नहीं हुआ। वो इस सारे वक्त में माजी को ही याद करते रहे। माजी जो खुशगवार था, जब राहदारियों के किनारे फूलों से सजे थे, जब मोहब्बतों पहाड़ों की तरह उनकी राह देखती थी। उस सारी गुफ्तगू में स्याह बाप का कोई नामो निशान नहीं था। डॉक्टर यज़दान घर वापिस आया तो खिलाफ मामूल आज मांझी और तैयबा टीवी लाउंज में बैठी बातें कर रही थी। वो भी मद्दा मुस्कुराहट के हाले में वहीं आकर बैठ गया। रात गए तक वो लोग वहीं बैठे गपशप करते रहे। डॉक्टर यज़दान के सारे दिन की थकन उड़न छू हो गई तो आज मैडम जी का मूड कैसे ठीक हो गया। उसने शानों से थामते हुए तैयबा को अपने करीब किया। मैंने सोचा बहुत तंग कर लिया डॉक्टर साहब को, मेरे ख्याल से इतनी सज़ा काफ़ी है। तैयबा खिलखिलाई। उस खिलखिलाहट में कहीं अंदर डॉक्टर यज़दान को बच्चे की किलकारी सुनाई देने लगी। शायद माँ जी ठीक कहती हैं, बच्चे की कमी तैयबा को चिड़चिड़ा कर देती है। क्या सोचने लगे? तैयबा ने उसे सोच में गुम देखकर सवाल दागा। कुछ नहीं मेरी जान, बस सोच रहा हूँ तुम्हें ऐसे ही देखने के लिए कोई पक्का बंदोबस्त करना पड़ेगा। कंधे से हाथ गिराकर वो बेड के किनारे जाकर टिक गई। जैसा कि तैयबा ने अपने नामुकम्मल जुमले की तकमील के लिए डॉक्टर यज़दान की आंखों में झांका। यज़दान ने नजरें चुराकर बात बदल दी। दिमाग में कुलबुलाते ख्यालात ने दिल की धड़कन बढ़ा दी थी। कोई बात तो है जो मुझसे छुपाई जा रही। तैयबा उठकर उसके सामने आन खड़ी हुई। अब बताए बिना कोई चारा नहीं था। डॉक्टर यज़दान ने उसे दोनों कंधों से थामकर बेड पर बिठाया और खुद उसके कदमों में नीचे बैठ गया। देखो तैयबा, हम बच्चा अडॉप्ट कर सकते हैं, मगर उसके लिए मेरा दिल नहीं मानता। तैयबा यकटुक उसका चेहरा देख रही थी। मेरे पास एक और रास्ता है, मगर उसके लिए मुझे तुम्हारी इजाज़त दरकार है। तैयबा यकदम उठकर आईने के सामने जा खड़ी हुई। आप कहना क्या चाह रही हैं? तैयबा के लहजे की लड़खड़ाहट को डॉक्टर यज़दान ने अपनी कमज़ोरी जाना, जबकि उसके मन का चोर उसके हलक में मीठी गोली की तरह घुल रहा था। मैं बच्चा चाहता हूँ, निकाह करूँगा और वो बच्चा तुम्हारा होगा। वो उठकर उसके सामने आन खड़ा हुआ। देखो, वो लड़की इस घर में मेरी ज़िंदगी में कभी नहीं आएगी। तुम मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत हो और इस घर की मालिक भी। वो उसकी आंखों में झांकते हुए बोला, तुम जानती हो ना ये बात? हाँ मैं जानती तो हूँ, वो पीछे हटते हुए बोली, मगर मेरे लिए तो वो किसी और औरत की औलाद ही होगी। उसके लहजे की घुलावट ने डॉक्टर यज़दान को मज़ीद दुखी कर दिया। मगर मैं ये सब करूँगी आपकी खुशी के लिए, वो नज़रें चुराते हुए बोली। डॉक्टर यज़दान ने आगे बढ़कर उसका सर अपने सीने से लगाया। सब ठीक होने ही वाला था। डॉक्टर यज़दान को अपनी ज़िंदगी किसी डगर पर जाती महसूस हो रही थी। अस्पताल की कैंटीन में भांत भांत के लोग यहाँ वहाँ फिर रहे थे। हाथ में बिस्किट का पैकेट थामे वो कोने की कुर्सी पर बैठी थी। उसका दुख शौक से निकलकर चीखने चिल्लाने तक जा पहुंचा और फिर वो बिल्कुल मुकम्मल खामोश हो गई। कल का दिन माहम एतजाज़ की ज़िंदगी का भयानक तरीन दिन था। वो कॉलेज से वापस आई तो मामा को किचन के फर्श पर गिरे हुए देखा। ऐन लम्हे तो उसे समझ ही नहीं आई कि ऐसा क्या करे कि उसकी हयाती का वाही सहारा उसके सामने खड़ा हुआ जाए। पहले वो उन्हें हैरत से उठाती रही, जब नहीं उठी तो वो बेबसी से रोने लगी। एम्बुलेंस में भी वो सारा रास्ता रोती रही। कुदरत का कानून कहिए या फिर ये इंसानी जहन के तजुर्बात की दीन है कि बच्चे को लगता है रोने से माँ जहाँ कहीं भी होगी दौड़ी चली आएगी। एक माँ ही तो होती है जो जब तक सांस लेती है जहाँ कहीं भी हो हवा की ले पर पहुँच ही जाती है। अस्पताल जाकर महम को पता चला ये दूसरा हार्ट अटैक जानलेवा साबित हो सकता है। पिछले 1 साल से फातिमा एतजाज़ दिल के आर्स में मुब्तला थी। पहला हार्ट अटैक माइनर सा था। जरा सी तबीयत बिगड़ी, कुछ दिन अस्पताल गुजरे और वो ठीक हो गई। मगर इस बार महम के औसान ही खता हो गए जब रिसेप्शन ने उसे 35 से 40 लाख तक का बंदोबस्त करने को कहा। कल शाम तक महम एतजाज़ किसी मौजे का इंतज़ार करती रोती रही।
मगर आज का सूरज अपने साथ एक कठोर पल लाया था। उसकी आंखों के कटोरे अब आंसुओं से खाली हो चुके थे। चेहरे के तासुरात पर पथरीलापन जमा था। अब वो इस हादसे को एक मसला समझने लगी थी, जिसके हल का कोई सिरा उसके हाथ नहीं आ रहा था। रोशनी की कोई रिमक नहीं थी। चार सौ अंधेरा था और वो अपने अहद का हाथ थामे कहीं दरमियान में खड़ी थी। कहीं से कोई आवाज़ लगाए और वो दौड़ी चली जाए। डॉक्टर यज़दान ने अस्पताल पहुंचते ही महम को पैगाम भेजा। वो रात के पिछले पहर अपने अंदर की जंग से जीत गया था। एक तरफ उसकी अज़दवाजी ज़िंदगी की कशमकश थी और दूसरी तरफ एक मासूम सी लड़की की मजबूरी। उसने ज़मीर को ये कहकर सुला दिया कि सारी दुनिया में मजबूरियां ही खरीदी जाती। किसी का तन खरीदने को किसी का धन इस्तेमाल किया जाता है। अपनी ज़िंदगी में ये चीटिंग तो वो भी डिज़र्व करता है। माहम एतजाज़ डॉक्टर यज़दान के सामने बैठी थी। डॉक्टर यज़दान की बात सुनने के बाद भी उसके चेहरे पर वही पिथराई तासरात ज्यों के त्यों मौजूद थे। डॉक्टर यज़दान कम अज़ कम इस तासुर की तवक्को नहीं कर रहा था, या फिर किस्मत की सितम ज़रीफ़ी महम एतजाज़ को हर जोड़ तोड़ से वाकिफ़ कराने पर तुल गई थी। वो उठी और भागती हुई ऑफिस से बाहर निकल गई। उसका दिल धड़क धड़क कर हलक तक आ गया था। दिमाग साईं साईं कर रहा था। उसे लगा हर चीज़ स्पिनर की तरह गोल गोल घूम रही थी। अस्पताल के फर्नीचर से लेकर स्टाफ तक, मरीजों से लेकर उनके अहलो अयाल तक सभी महम एतजाज़ का तवाफ करने लगे थे। वो दीवार का सहारा लेकर कुछ देर खड़ी रही, फिर आहिस्तगी से चलते चलते वॉशरूम तक आ गई और अपना सर टैप के नीचे रख दिया। सर में पानी डालने से उसे कदरे सुकून मिला। भला कोई इतनी बड़ी बात उससे कैसे कर सकता है। वो काफ़ी देर वहाँ खड़ी रही। आईने में अपना चेहरा देखकर उसे फिर से ढेरों रोना आया। वो लॉन की सीढ़ियों पर बैठी थी जब उसे महानूर सामने से आती दिखाई दी। वो उठी और भागते हुए जाकर उसके गले जा लगी। महानूर के दिलासों ने उसे ढारस बंधाई थी। भरी दुनिया में कोई शनासा चेहरा किस कदर अहम होता है, ये बात आज महम एतजाज़ को समझ आई थी। महम उसे डॉक्टर यज़दान के बारे में बताने लगी। ऑपरेशन के तमाम अखराजात डॉक्टर साहब उठाएंगे। मामा बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। वो आंखें रगड़ते हुए महानूर को बताने लगी, मगर शर्त सुनकर महानूर दंग रह गई थी। तुम अपने लिए इतना बड़ा इम्तिहान कैसे चुन सकती हो? महानूर हैरान थी। मुझे अपना अहद याद है महानूर, मैं अपनी मामा के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। उन्होंने सारी जिंदगी तन्हा गुजार दी, कभी अपने लिए साथी चुनने के बारे में नहीं सोचा। अपनी सारी जिंदगी मुझ पर वार दी। अब मुझ पर भी वाजिब है कि अपनी उम्र और जिंदगी अपनी मामा की जिंदगी से अहम रखूं। महानूर के सीने पर भारी पत्थर आन पड़ा था। कैसे वो नट खट सी लड़की उसके चिढ़ाने पर चिढ़ जाया करती थी, और वही लड़की आज अपनी सारी उम्र दान करने को तैयार थी। एक हफ्ते बाद फातिमा एतजाज़ का ऑपरेशन हुआ था। महम उस सारे वक्त में माँ के साथ ही रही थी, किसी सहमे हुए बच्चे की तरह। वो बार बार रिसेप्शन पर जाती और फिर बिना कुछ कहे वापस आकर बैठ जाती। डॉक्टर वलीद का रवैया उसके साथ खासा मुश्तफ़िक था। हाँ, अलबत्ता डॉक्टर यज़दान कुछ खड़े और अजनबी अंदाज अपनाए हुए थे। वो उसे देखकर अंदर ही अंदर डरने लगी थी। उस बंदे की शर्त वो कैसी पूरी कर पाएगी, जो उससे ढंग से बात तक नहीं कर रहा, जिसने अब तक उसे दिलासा तक नहीं दिया। वो फातिमा एतजाज़ से बहुत प्यार से बात करता, तब उस चेहरे की नरमी को कोई मात नहीं दे सकता था। महम उसे देखकर सोचने लगी थी, मरीजों से अलग होते ही ये आदमी अपने चेहरे पर इतनी सख्ती कैसे जमा लेता है। कुछ दिनों बाद फातिमा को वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। वो कई बार महम से बिल्स की अदायगी के बारे में पूछ चुकी थी। हर बार महम उन्हें टाल देती, जैसा कि ये एक नहायत ही गैर अहम बात हो। महानूर हर रोज़ फातिमा एतजाज़ को देखने आती और फिर महम से डॉक्टर साहब का हाल ज़रूर पूछती कि शायद महम अंदर का लावा बाहर निकाले, मगर महम ने तो जैसे चुप ही साध ली थी। मामा के ठीक होने के बाद वो वक्त का हिसाब किताब करने लगी थी, जैसे जल्द अज जल्द वो इस अहद से आज़ाद हो। वो शायद अपने तय इस बात को कॉलेज की एक असाइनमेंट जितनी अहमियत दे रही थी, इस बात से बेखबर कि ये दो लोगों की जिंदगियों के मिलन का सवाल था। 15 दिन बाद फातिमा एतजाज़ को डिस्चार्ज कर दिया गया। डिस्चार्ज स्लिप हाथ में थामे महम डॉक्टर यज़दान के रूम में चली गई। वो आज ही बात क्लियर करना चाहती है। वो डॉक्टर उस्मा के साथ बैठा चाय पी रहा था। मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है।
वो दरवाज़ा खोलते ही बोली। डॉक्टर उस्मा ने उसे सामने बैठ जाने को कहा। डॉक्टर साहब, मुझे आपसे अकेले में कुछ बात करनी है। डॉक्टर उस्मा ने कुछ हैरानगी से यज़दान की तरफ देखा, गोया वो एक माह पहले वाली डरी सहमी रोती हुई लड़की कहीं मनकूद हो चुकी थी। उसकी जगह उस बदली बदली सी लड़की ने ले ली थी। वो पहले दिन एक छोटे से स्टॉलर का हिजाब किए हुए थी और आज उसकी चादर की बुक्कल उस लड़की से औरत का रूप दे रही थी। डॉक्टर उस्मा उठकर रूम से बाहर चली गई। यज़दान बेतासर चेहरे के साथ उसे देखे गया। हम आज घर जा रहे हैं, सोचा घर जाने से पहले आपसे सारी बात डिस्कस कर ली जाए। वो अपने जूतों को घूरते हुए बोली। डॉक्टर यज़दान की नज़रें उसके चेहरे पर गड़ी थीं, कांपते होंठ और लरजती पलकें इस बात की गवाह थी कि वो घबराई हुई है, मगर वो अपने लहजे और अल्फाज से उस घबराहट पर काबू पाए हुए थी। वो बेसाख्ता मुस्कुराया। इतनी जल्दी किस बात की है? आप सुकून से घर जाएं, मामा का ध्यान रखें। यज़दान ने मुस्कुराते हुए कहा। तो फिर हमारा निकाह कब होगा? पहली बार उसने यज़दान की आंखों में देखा। वहाँ एहतराम था, मगर पसंदीदगी कहीं नहीं थी। कोई जल्दी है? यज़दान कदरे आगे को झुका। माहम दोनों हाथों को मुसलसल मरोड़ रही थी। मैं चाहती हूँ कि मामा को मुकम्मल सच ना बताया जाए, वो पहले ही ठीक नहीं है। कहते हुए वो बार बार यज़दान की तरफ देखती, गोया अंधिया मिल जाए आगे कुछ कहूँ या नहीं। यज़दान उसकी बातों पर इस्बात में सर हिला रहा था। हाँ ठीक है, जैसे आप बेहतर समझो। इट्स योर कंसर्न, मुझे कोई इशू नहीं है। आप फातिमा साहिबा को क्या बताना चाह रही हैं? वो नरमी से बोला। यही कि आप बे औलाद हैं, दूसरी शादी करना चाहते हैं और मैं अम्मी के साथ ही रहूँगी। शादी के लिए मेरी आपसे यही एक शर्त थी कि मैं अम्मी के साथ रहना चाहती हूँ, फिर बाद में आप बेशक छोड़ देना। वो तेज़ी से बोली। इट्स ओके। ओके, यज़दान ने उसका जुमला काटते हुए कहा। तो फिर कब? माहम का सवाल हनूज अपने नुक्ते पर मौजूद था। मैं कल या परसों चक्कर लगाता हूँ। वो बिना कुछ कहे उठकर वापस आ गई। घर वापसी के वक्त बारिश हो रही थी। गाड़ी के वाइपर तेज़ी से चल रहे थे। डॉक्टर यज़दान गाड़ी चलाते हुए मुसलसल माहम के बारे में सोचे जा रहा था। वो उसे कम उम्र होने की बिना पर कमज़ोर और बेवकूफ़ समझ रहा था। कहीं अंदर वो कंफ्यूज्ड भी था कि अब बात कैसे शुरू करेगा। माहम एतजाज़ ने उसकी कन्फ्यूजन दूर कर दी। घर आते ही वो माँ जी के कमरे में चला गया। तैयबा शायद किचन में खाना निकलवा रही थी। माँ जी बिस्तर में दबकी बैठी थी। ज़रा सी मौसम की तब्दीली उनको कमरे में बंद कर दिया करती थी। वो सामने की कुर्सी पर टांग जमाए बैठ गया। माँ जी उसकी इस अदा पर मुस्कुराईं। वो बचपन से ऐसा ही था। जब भी उसे कोई अहम बात करनी होती, वो बिल्कुल सामने आकर बैठा, गोया कह रहा हो, हाँ तो सब क्लियर करती हैं। तुम कोई अहम बात करना चाह रहे हो? हाँ जी, वो मुस्कुराया। दरअसल मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ। वो अपनी माँ को ये फैसला यूं सुना रहा था जैसे बता रहा हो। माँ जी, बाहर बारिश हो रही है। वो मुस्कुराई, फिर दरवाजे की तरफ देखा, गोया तैयबा का ना होना कन्फर्म कर रही हूँ। बेटे, आप दुल्हन से बात कर चुकी हैं? माँ जी, हम डिस्कस कर चुकी हैं और उसकी रजामंदी से ही फैसला हुआ है। माँ जी के चेहरे पर हैरानगी के साथ परेशानी के आसार भी नमूदार हुए। तैयबा तो छोटी छोटी बात पर हंगामे किया करती थी। ये 2 दिनों गंगा उल्टे रुख क्यों बहने लगी? दरअसल तैयबा भी बच्चे की कमी को लेकर बहुत महसूस करती है और दूसरी बीवी इस घर में कभी नहीं आएगी। बच्चा हमारे हवाले करने के बाद मैं उसे तलाक दे दूंगा। डॉक्टर यज़दान की नज़रें खुद ब खुद झुक गईं। माँ जी ने चेहरा फेर लिया, गोया ये इस बात का अंदेशा था कि अब तुम जा सकती हो। यज़दान भी उठा और कमरे से निकल गया। तैयबा का खुशगवार मूड देखकर वो माँ की हल्की फुल्की सी नाराज़गी भी भूल गया। तैयबा के संग उसकी ज़िंदगी फिर से बहारों के दौर में दाखिल हो रही थी। पतझड़ का मौसम गुजर चुका था। आदमी चाहे तो क्या ही नहीं कर सकता। हाँ, किसी को ज़बरदस्ती अपनाया नहीं जा सकता, मगर ऐसे मौके तो पैदा किए जा सकते हैं कि वो अगला इंसान के वजूद का आदी हो जाए। रात भर बारिश बरसती रही। कोई फिक्रों से आज़ाद जी भर कर सोया और किसी की रात आने वाले कल की हौलनाकी में खिड़की से बरसती बारिश देखती रही। अगले दिन दोपहर से पहले डॉक्टर यज़दान माँ जी को लेकर माहम एतजाज़ के घर पर मौजूद था।
वो छोटा सा मगर खूब नफासा से सजा घर के मकीनों की देदा से पसंद बता रहा था। छोटे से टीवी लाउंज के सामने की दीवार पर सिर्फ माहम की तस्वीरें लगी थी, शायद पिछले 17 साल की तस्वीरें बाकायदगी से वहां लगाई गई थी। माँ जी हर तस्वीर को गौर से देखती रही, जबकि डॉक्टर यज़दान अपने जूतों को ही घूरता रहा। फातिमा एतजाज ने उनकी बात तहम्मुल से सुनी और मुस्कुरा दी। डॉक्टर यज़दान को कदरे हैरानगी हुई और अपने तय बहुत से मफरूज़े सोच कर आया था, मगर यहाँ तो रावी चैन ही चैन लिख रही थी। तो क्या वो पहले से इस सारी बात के लिए तैयार थी? डॉक्टर यज़दान ने जहन में सवाल कलबला रहे थे। माहम हाफ वाइट ड्रेस पे मलबूस माँ जी को काफ़ी डिसेंट लगी। उसके चेहरे पर वही पथरीला एहसास मौजूद था, जिस एहसास ने एक बार भी नज़र उठाकर ये डॉक्टर यज़दान को नहीं देखा। वो सारा वक्त माँ जी के पहलू में दबकी बैठी रही। जुमा का दिन निकाह के लिए तय पा गया और नाटक में मौजूद सब अफराद ने वहां से निकलते ही सुख का सांस लिया, जैसे वहां मुस्कुराना और अच्छे से बात करना लाजिम ठहराया हो। यज़दान को कहीं से नरम हवा के झोंके महसूस हो रहे थे। हर छोटी से छोटी बात पर झगड़े निपटाने वाले आदमी को जब कोई खुद ही राह निकाल दे, उसके लिए ये चीज़ बहुत अहमियत रखती है। वो फातिमा एतजाज को जानता था और कहीं अंदर घबरा रहा था, मगर माहम ने उसकी सारी मुश्किलें आसान कर दी। शायद वो इस सब को अपने हिस्से का वर्क आउट समझ रही थी। घर जो भी था, डॉक्टर यज़दान दिल से पुरसुकून था। जुम्मा आने में अभी 5 दिन बाकी थे। निकाह के सारे इंतजामात डॉक्टर यज़दान के दोस्त अहमद ने किए थे। वो इन दिनों अस्पताल में काफ़ी मसरूफ़ रहा था, फिर तैयबी की दिलजोई भी लाज़मी ठहरी थी। वो जानता था ये दुख तैयबा के लिए बहुत बड़ा है, मगर वो हर पल उसको एहसास दिलाता रहता कि यज़दान की ज़िंदगी की पहली और आखिरी मोहब्बत तैयबा ही है। इन दिनों को तकरीबन रोज़ ही बाहर खाना खाने जाते रहे। वो तैयबा को खुश रखना चाहता था, बार बार खुद को यकीन दिलाता कि बस 1 साल की ही तो बात है, फिर उनकी ज़िंदगी में बहारें ही बहारें होंगी। हम हैं उजड़े हुए वक्त की कतरने, तुम बहारों के दर पर खड़े लोग, तुम बड़े लोग हो। माहम आईने के सामने खड़ी काफ़ी वक्त से बालों में ब्रश फेरे जा रही थी। जहन दूर कहीं खला में तैर रहा था। तभी दरवाजे पर आहट हुई। फातिमा एतजाज उसे देखकर ज़बरदस्ती मुस्कुरा दी। अपनी बच्ची को ये सब करते हुए देखना उनका दिल चीर रहा था, मगर वो बीमार थी और बकौल माहम डॉक्टर साहब उसे सहारा देना चाहते थे। उनके हाथ में निकाह का सुर्ख जोड़ा था। माहम ने आगे बढ़कर खुद ही वो जोड़ा थाम लिया और मामा को कमरे से बाहर निकालकर दरवाज़ा बंद कर लिया। वो महानूर का इंतज़ार कर रही थी, मगर महानूर आई ही नहीं। क्यों? क्योंकि जब उसे किसी अपने की ज़रूरत होती है, वो मौजूद ही नहीं होता। क्या सारे लोग इतने ही अकेले होते हैं जितनी माहम एतजाज अकेली होती है? सबके पास फैमिली और दोस्त होते हैं, सहारे होते हैं, बैसाखियाँ होती हैं। मेरे हिस्से की दौलत में मोहब्बत क्यों नहीं लिखी गई? वो फूट फूट कर रो दी। खुद को मजबूत दिखाते दिखाते वो थक गई थी। काफ़ी देर रो देने के बाद वो किसी मेकान की असर के तहत उठी और बाथरूम में घुस गई। वो बाथरूम से निकली तो दरवाज़ा ज़ोर से बज रहा था। लड़की अंदर आई और अपना मेकअप का सामान बखेरने लगी। उसे देखकर माहम को बिला वजह उस पर गुस्सा आने लगा, मगर उसमें यह गुस्सा जाहिर करने की हिम्मत भी नहीं थी। टीवी स्क्रीन पर बदलते मनाजिर की तरह माहम एतजाज की ज़िंदगी में लिखा आज का दिन भी ऐसा ही था, पल पल में बदल रहा था। बाहर कुछ लोगों की आवाज़ें सुनाई देने लगी। आईने में नजर आता चेहरा उसे अजनबी लगने लगा था। काफ़ी देर वो खुद को ही आईने में देखती रही, तो बिलाखिर तुम ये रूप धार चुकी हो। कहीं अंदर के सन्नाटे उमड़ उमड़ कर बाहर आ रहे थे। थोड़ी देर बाद उसे डॉक्टर यज़दान के पहलू में बिठा दिया गया। वो बिल्कुल भी दुल्हा नहीं लग रहा था। वही पुराने हुलिये में नए रिश्ते को ओढ़ने के लिए आने वाला शख्स आज उसकी ज़िंदगी का मालिक बनने आया था, मगर सिर्फ 1 साल के लिए। उसके वजूद ने उसको ढारस बंधाई। निकाह के कलमात ने उसका दिल मुट्ठी में लेकर जोर से भींचा, मगर ये तो नाटक है। एक लम्हे को यूं लगा जैसे दिल उछल कर हलक में आ गया हो। माहम ने गहरा सांस लिया और मुंह से खुद बखुद ही कबूल है कि अल्फाज फिसल गए। मुबारक सलामत का मीठा मीठा सा शोर उठा। अहमद ने उठकर यज़दान को गले लगाया। माछी भी उठकर माहम के पास आ खड़ी हुई और उसका माथा चूम रही थी, प्यार से सर थपक रही थी। फातिमा एतजाज के दिल को यक गुना सुकून नसीब हुआ और माहम जो इस सारे तोड़ जोड़ से वाकिफ थी, दिल महसूस कर रह गई। अगर उसकी माँ को इस निकाह की हकीकत मालूम पड़ जाए तो इस सौदेबाजी पर वो शायद फिर से अस्पताल के बिस्तर पर जा पड़े। इन्हीं सोचों में गलतां वो अहबाब को
वहां से निकलते देखती रही। मांझी भी डॉक्टर यजदान के दोस्तों के साथ ही चली गई थी। वहां कोई नहीं था जो माहम के साथ बैठकर हंसता या कम से कम बात ही करता। वो खुद ही मामा के पास आकर खड़ी हुई। अरे मेरी जान, आप वहां बैठे। वो उसे देखते ही बोली, आप बहुत थक गई हैं, सुबह से काम में लगी हुई हैं, प्लीज आप आराम कर लें। माहम उनका बाजू तकरीबन खींचते हुए उन्हें कमरे में ले गई। पहले दवा दी, फिर आराम करने का कहकर बाहर आ गई। लाउंज की छोटी सी खिड़की से उसे डॉक्टर यजदान की धुआं उड़ाती सिगरेट नजर आ रही थी। एक ह्योला सा अपने मुट्ठी कभी बंद करता तो कभी खोलता। वो काफी देर वहीं खड़ी उस साए से महवे कलाम रही, फिर थक कर कमरे में आ गई। वहां सब कुछ वैसे ही बिखरा पड़ा था जैसे वो छोड़कर गई थी। आह, भला कौन था जो उसके वजूद की टूटी किरचियां समेटता। उसके कमरे के बिखरावे से लेकर उसकी जिंदगी के बिखरावे तक हर शय माहम एतजाज ने खुद ही तो करनी थी। बाज़ औक़ात हम खुद भी अपने लिए कम पड़ जाते हैं। निभाते निभाते, समेटते समेटते कहीं मन का सूना आंगन चीख उठता है। कोई तो हो दर्द की दवा करे। बेशक इस बिखरावे को तरतीब ना दे, मगर तरतीब देने पर सहारा तो दे। इन्हीं सोचों की नाव में डूबते तैरते वो सब समेट चुकी थी। एक बार फिर आईने के सामने खड़ी वो अपने पथरीले एहसासात को तर कर रही थी। लेकिन कब तक कोई खुद पर मास्क चढ़ा सकता है? नहीं माहम, बिल्कुल नहीं। तुम उस शख्स के सामने अपना ज़ब्त कायम रखोगी। दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। वो आईने में उसका आना देख चुकी थी। मुड़े बिना ही उसने सलाम किया, जिसका जवाब महज हूँ में दे दिया गया। एक बार फिर खुद को आईने में देखने के बाद वो मुड़ी और मेकानकी अंदाज में उसके साथ आन बैठी। कैसी हैं आप? डॉक्टर यजदान ने उसे बगौर देखते हुए कहा। अच्छी हूँ। वो दोनों हाथ एक दूसरे में फंसाए मुसलसल मरोड़ रही थी। डॉक्टर यजदान ने उसके हाथ अपने हाथों में लिए। इट्स ओके माहम। उफ, कितना आसान था उस आदमी के लिए कह देना इट्स ओके माहम। और ये तीसरी बात था, डॉक्टर साहब ओके कह देने से ओके हो नहीं जाता। माहम की आंखों में साकतपन सा मौजूद था। यजदान उसके यूं डॉक्टर साहब कहने पर खुलकर मुस्कुराया। अब तक उस लड़की ने यजदान का नाम नहीं लिया था। वो उसे हमेशा डॉक्टर साहब कहा करती थी। जितना वक्त हम इस रिश्ते में रहेंगे, तुम्हारी परवाह करूंगा। मैं कोशिश करूंगा तुम्हें कोई दुख ना पहुंचे। अपनी औलाद के लिए इतना तो मैं कर सकता हूँ। माहम ने आंखें भींचकर उमड़ते पानी को अंदर ही रोका। कोई इतने सख्त अल्फाज कैसे इस्तेमाल कर सकता है? तो माहम एतजाज, यही तुम्हारी हैसियत रही? एक झटके में उस मोम होती लड़की ने पथरीले एहसासात का मास्क दोबारा पहन लिया। रात कतरा कतरा ढलती रही। एहसासात और ख्वाहिशात की डोलती नाव में चप्पू संभाले हर घर अपनी खुशियों के लिए समंदर में गोते लगाता रहा। उन्हीं समंदरों की तह में सुना था हीरे जवाहरात होते हैं, और इन हीरे जवाहरात की तलाश में निकले हुए लोग उस सफ़र की कीमत भी अदा करते हैं। माँ जी ने घर आते ही तैयबा को तलाशा, मगर वो घर पर मौजूद नहीं थी। उन्होंने उस वक्त यजदान को फ़ोन करना मुनासिब नहीं समझा। जब निस्फ शब तक वो घर नहीं लौटी तो वो भी सुकून से सो गई। शायद वो अपने मन का बोझ हल्का करने माँ की तरफ चली गई होगी। अगली सुबह रोशन थी। मौसम साफ होता है तो लोगों के मन की कली यूं ही खिल उठती है, राहें साफ होने लगती हैं। माहम की सुबह कदरे पज़मुर्दा सी थी। जहन में कहीं दूर के सफ़र तक होने की थकन मौजूद थी। वो बाहर आई तो मामा और डॉक्टर साहब छोटे से बागीचे में बैठे चाय पी रहे थे। वो दोनों पौधों के मुतल्लिक़ बातें कर रहे थे। माहम बेख्याली से उन्हें यूं हंसते हुए देखे गई। शायद उस खुशी का रंग हाफ वाइट था, हल्का और मन को शांत कर देने वाला। यजदान ने उसकी मौजूदगी को महसूस किया तो मुड़कर देखा। उसे देखते ही वो उठ खड़ा हुआ और अपनी चाय ख़त्म कर चुका था। शायद उसके उठने का ही इंतज़ार कर रहा था। गुड मॉर्निंग। वो उसे देखते हुए मुस्कुराया। गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब। माहम के चेहरे पर वही पथरीला एहसास दोबारा उभरा। वो थोड़ी देर पहले की हल्की सी खुशी गायब हो चुकी थी। वो फातिमा एतजाज से इजाज़त लेकर चला गया। माहम के चेहरे के तासुर ने उसे उसकी हद याद दिला दी। कहीं अंदर उसे शर्मिंदगी हुई। फजूल में वो अच्छा बन रहा था। तैयबा अगले कई दिन तक मैके ही रही। डॉक्टर यजदान ने उसे कई कॉल्स की, मगर उसने अटेंड नहीं की। फिर वो खुद ही उसे लेने चला गया। यजदान को लगा था वो उदास होगी।
मगर वो बिल्कुल ठीक ठाक थी। उसके एक बार कहने पर तैयबा उसके साथ घर आ गई। डॉक्टर यज़दान अजीब कशमकश का शिकार हो चुका था। एक वहाँ थी जो अपने हर अमल से अपनी सी लगती थी, मगर उसके चेहरे के तासुरात ने एक हद खींच रखी थी, और एक उसकी ज़िंदगी की मालिक उसके घर में मौजूद थी, मगर कभी अपने अमल से अपनी अपनी सी नहीं लगी थी। वो हर हफ्ते महम के घर चक्कर लगाता था। वहाँ बैठा वो फातिमा एतजाज से बातें करता रहता। किन अखियों से वो महम की मौजूदगी को महसूस कर लिया करता, मगर वो अजनबी बनी अपने काम करती रहती। इन्हीं दिनों उसने वो खुशखबरी सुनाई जिसको सुनने के लिए उसके कान तरस गए थे। माँ जी भी बेइंतहा खुश हुई। खिलाफ मामूल तैयबा ने भी मुंह मीठा किया। तैयबा के रवैये ने डॉक्टर यज़दान की खुशी को दुगना कर दिया, मगर उस शाम उसकी सारी खुशी एक बिस्किट रैपर की तरह कूड़ेदान में पड़ी थी। जब उसने महम को परेशान देखा, वो कैसे खुश हो सकती थी, जबकि वो जानती थी ये बच्चा एक अमानत है। वो उसकी कीमत ले चुकी है। उसकी माँ की ज़िंदगी उस बच्चे की ज़िंदगी से खरीदी गई है। उस शाम उसके अंदर की सारी मजबूती कहीं खो गई थी। वो डॉक्टर यज़दान के सामने मोम की गुड़िया की तरह फूट फूट कर रो दी थी। मैं मुजरिम बन चुकी हूँ। इस बच्चे का वजूद मुझे एहसास दिलाता है मैं खुद गर्ज हूँ। आप बताइए डॉक्टर साहब, मैं किसकी गुनहगार हूँ? डॉक्टर यज़दान का दिल किसी ने मुट्ठी में लिया। वो जितनी शिद्दत से उससे दूर रहने हद कायम करने की कोशिश करता था, वो उस शिद्दत से उसकी सोच और शख्सियत का दीवानावार कायल होता चला जा रहा था। उसे दिलासा देते, चुप करवाते, कब वो खुद भीगी आंखों से उसकी गोद में सर रखे सोया, उसे खबर तक ना हुई। डॉक्टर यज़दान के शब रोज़ महम की तरफ गुजरने लगे। महम को अपनी तन्हाइयों का साथी मिल गया, और डॉक्टर यज़दान घर की खुशियां ढूंढते ढूंढते इस आंगन का मकीन बनता गया। तैयबा ने अरसा हुआ उसकी परवाह करना छोड़ दी थी। वो हर शाम निकल जाती और माँ जी उसका यूं बनना संवरना देखती रह जाती, जाने उनके बच्चे किस राह पर चल दिए थे। इस दौड़ो धूप में तौहीद यज़दान ने उस दुनिया में आंख खोली। उसे देखते ही डॉक्टर यज़दान रोने लगा था। वो हूबहू महम एतजाज जैसा था, वही पतले पतले से नर्म और नाजिक नैन नक्श। वो कैसे इस बच्चे को उसकी माँ से जुदा करेगा? माँ जी बच्चे को सीने से लगाए ना थकती। फातिमा एतजाज की तो दुनिया ही बदल चुकी थी, मगर तरतीब बदली, क्योंकि वक्त एक बार फिर से बदल रहा था। उसे इस दुनिया में आए तीसरा दिन था जब डॉक्टर यज़दान ने उसे लाकर तैयबा की गोद में डाल दिया। उसके चेहरे के नैन और नकोश ने तैयबा को महम की याद दिला दी। वो यकदम चीखने चिल्लाने लगी। तैयबा ने उसे लेने से इनकार कर दिया। एक तरफ तो आज तीसरा दिन था, यज़दान ने महम की शक्ल तक नहीं देखी थी। वो अपने अहद निभाने वाला शख्स था। कहीं वो इस राह से भटका था, मगर वो लौटकर अपने घर ही आया था, इस बात को समझे बिना कि उसका आशियाना तो अब रेजा रेजा हो चुका था। माँ जी इसी वक्त से डर रही थी, मगर जानती थी तैयबा का यूं बनना संवरना कम से कम उनके बेटे के लिए तो नहीं था, और एक दिन ये बात सामने आने ही वाली थी। यही दिन शायद कयामत का दिन था। एक तरफ एक लड़की अपना कर्ज उतार कर तही दामा रह चुकी थी, और दूसरी तरफ डॉक्टर यज़दान अपना पूरा कर चुकने के बाद भी अपना घर नहीं बचा सका था। तैयबा के अल्फाज ने उसके कानों में पिघला हुआ सीसा उंडेल दिया था। वो माँ बन सकती थी, मगर डॉक्टर यज़दान के बच्चे की माँ बनना नहीं चाहती थी। वो इस कदर आसानी से बेवकूफ़ बनता आया था। तैयबा अपना सामान बहुत पहले शिफ्ट कर चुकी थी। उस दिन वो भी हमेशा हमेशा के लिए घर छोड़कर चली गई। कई दिन डॉक्टर यज़दान अपने कमरे में बंद रहा। माँ जी तौहीद को संभालते संभालते हलकान हो चुकी थी। दूसरी तरफ उस बच्चे की माँ थी जिसने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा था। शायद वो दोनों ही अहद की पासदारी से बखूबी वाकिफ थे। माँ जी ने महम से राब्ता किया। तौहीद की तबीयत संभल नहीं रही थी। डॉक्टर यज़दान उसे लेकर अस्पताल पहुंचे तो माँ वहाँ पहले से मौजूद थी। उसे गोद में लेकर वो रोने लगी। अगले कई दिन वो दोनों अस्पताल रहे। वक्त हर दर्द का मरहम बनकर उनके दरमियान मौजूद था। तौहीद की तबीयत संभली तो डॉक्टर यज़दान को कदरे चैन आया। वो बालकनी में खड़ा था जब उसे महम के आने की आहट सुनाई दी थी। डॉक्टर साहब, वो बोली। डॉक्टर यज़दान ने मुड़कर अपनी उंगली उसके होंठों पर रख दी। यज़दान नाम है मेरा, तुम मेरा नाम क्यों नहीं लेती? वो मुस्कुराई। हाँ, अब डॉक्टर यज़दान ने दोनों हाथ अपने हाथों में लिए। हम दोनों तुम्हें छोड़कर गए थे, रह नहीं पाए यार। उसकी आंखों की बेबसी पर महम को बेइंतहा प्यार आया। अब बाप बेटा कहीं जाकर दिखाओ मुझे। अच्छा जी, वो कहकर लगाकर हंसा। वक्त ने उस हंसी पर मोहर लगा दी। अब ऐसा भी नहीं कि बुरा वक्त आता रहे। अच्छा वक्त की भी उम्र लंबी हो जाती है अगर कोई हमारे चाहे और संवारे, बिल्कुल ऐसे जैसे कभी हम चाहते थे हमें संवारा जाए।